مزید ٹھیک ہے سارے آگے ملک تم ہی نظر آیا ہو اچھا پہلے میرے ذہن یہ ہے نا کہ راتی فون کر لیتے میں ایک دم کلک ہوا السلام علیکم ہماری یہ بہت پرانے دوست ہے چل جی آپ کلاس کی ڈیکوریشن ساری میں کرتا ہوں چارٹ لکھنے دیواروں پہ نگار بنانے کی سارے میں کرتا ہوں بہت ہو گیا سر لطیف صاحب ایک اور تھے ان کا بیٹا سر یہ اپنا افتخار صاحب وہ ہمارے اور وہ شاعری کیا خوبصورت وہ بھی یاد وعلیکم السلام صاحب کیا حال ہے آپ کی آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے آئیے سر یہ جناب یہ آپ کے لیے ہے سر السلام علیکم خیریت سے ٹھیک ٹھاک آئے سر ہو چکی ہے سر آپ کے حال آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے السلام علیکم سر نہیں بیٹا میرا خیال ہے اسمبلی کی بیل بجائے رنگ بجائے رنگ کریں رنگ رہے گی آپ بیل بجائے تاکہ اسمبلی تمام مواد اسمبلی میں چلے بھائی چلو سارے اسمبلی میں لائن بنا کر آپ اسمبلی میں چلے صاحب یہ وداؤٹ یونیفارم جو ہے میں آپ کو بندوبست کرتا ہوں مرغا بناؤ جی نا اظہر کو مرغا بنا لیٹ آیا ہے ادھر جا رہے ہیں سامنے اسٹیج کے سامنے جا رہے ہیں اسٹیج کے سامنے جا رہے ہیں یار آپ کو نہیں پتا لائن میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں اپنا کام کر اپنے تیرا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں تیرا تو جرمانہ ہو یونیفارم والوں کو بغیر یونیفارم کو باہر نکالنا آپ نے آپ آج ایسی لائن میں آ جائیں یہ لے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا نام کیا مجھے نہیں پتا اور یار جو لائٹ بچے ادھر رہے بات لمبی ہو جائے گی خراب ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے 3 لائنیں بنا لیں بس ٹھیک ہے چوتھی لائن بنانی چوتھی بنا لیں آگے عقیل صاحب آگے آ جائیں اگلی لائن میں عقیل ظہور آگے اگلی لائن میں آ جائیں ٹوپیاں جو ہیں چلو ٹوپیاں پہنو سارے یہ آپ کو یونیفارم کی ٹوپی مہیا کی گئی تھی کدھر ہے ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی پہنے نہیں سارے ٹوپی پہن لو ٹوپی بغیر یونیفارم ویلکم کریں ہمارے مہمان آ گئے
50 سوز ہے نا یہ کم کے 50 ہے میرے خیال میں. ہاں جی 55 بس میں نے اندازہ لگا لیا ویسے میں نے کہا 50 ہو گئے کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا 41 سال بعد. 1982 میں یہ تمام جو بوائز کھڑے ہیں یہ یہاں سے میٹرک کر کے گئے اور اللہ کے فضل سے ایک سے ایک جو ہے وہ کامیاب ہے. میں اپنے اساتذہ کرام کو ان سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کروں گا اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد تنویر الرحمان کلاس 10A. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس کے بعد میں نعت کے لیے درخواست کرتا ہوں عصمت امان صاحب سے وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں. جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں. ایک پتھر کو آئی نہ گر مل گیا. مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں. ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. ان کا دیوانہ ہوں. ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ
थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। यूनिफॉर्म जो बच्चे हैं, आपको ताकीद की गई थी कि यूनिफॉर्म में आना। ये ज़रा सारे इस तरफ लाइन में आ जाए, सारे बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, यूनिफॉर्म वाले इधर हो जाए, इधर इधर देखिए जी बच्चे यूनिफॉर्म में तो लाइन बना ले आप। ये हमारे एजुकेशन ऑफिसर है मलिक अरशद साहब, लेकिन अभी जो स्टूडेंट है ना असल में मैं तो वो आप लोगों को पहले के इम्प्लीमेंटेशन कर दूँ, ये 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने क्या था वो कुछ रुक देगा। 1982 है लेकिन कोई पता नहीं ना भी खतरा है। हाँ जी कान पकड़ा उठक बैठक करा दे, चले एक दफा हाथ ऊपर कर दे बस, ठीक है ठीक होगी। मैं इस वक्त जनाब मलिक साहब से इधर आए पहले आप। कौन सा टाइम है स्कूल में आने का? अच्छा नीचे नीचे खड़े रहो। हाँ गलती होगी, ये कुछ तरीका है? क्या टाइम था आपके स्कूल में आने का? 11 बजे आपको आना चाहिए था। हमेशा आप लेट ही आते हो, दीवारें पलंगना और लेट आना, शुरू से यही काम है। चले आप उधर जाएं, उधर उधर नहीं, बाद में ये अभी स्टेज पे नहीं मिलेंगे, आप उधर बैठ खड़े हो। इनकी मुर्गी भाग गई थी, वो पकड़ते रहिए। सबका तारुफ होगा क्लास में। अभी सर पे हाफिज अपना मलिक इसहाक साहब, अपने साहब एडमास्टर साहब सर वो दुआ करानी थी जी, कराएंगे इनकी तकरीर के बाद। तो अपने ख्यालात का आधार फरमाएं और अपने बच्चों के दुआ से नवाजें आप। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई है आज देखकर कि आप लोग जो हैं अच्छे माहौल में यहाँ पे खड़े हैं और एक अच्छा आपने फंक्शन का इनकाद किया है ताकि तमाम पुराने साथी जो हैं 82 के आपस में मिल बैठें और एक दूसरे के साथ तारुफ हो और एक दूसरे की खैरियत का पता चल सके। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस मौके पर मदऊ किया और मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। आप लोगों का जो पीरियड गुजरा है, जब आप 82 में थे तो उस वक्त मैं गालबन 38-37 का होगा, उस वक्त मैं भी। वो वक्त मुझे दोबारा याद आ रहा है कि इस तरह स्टेज पे आना, इधर चक्कर लगाना, क्लासों में घूमना, किसी को लेट आना, गेट के पास खड़ा होना, वो लेट आ रहा है, भाग के आ रहा है। तो डिसिप्लिन के लिए आप लोगों को मैंने जो कुछ दिया, मैंने वो देखा उसमें आप लोग काफ़ी कामयाब हैं। खुशी हुई है, कहने को बहुत कुछ जी चाहता है पर बहुत खुशी है। मैं यही कह सकता हूँ यहाँ पर कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे और आप बुलंद मकाम पर जाएँ। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और ज़िंदगी दे, जो वक्त है अच्छा गुजर जाए और मेरे अपने
दौरानिया में जो कुछ मैं आपकी बेहतर कर सका तो ठीक, अगर कोई मुझे कमी बेशी रह गई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आइंदा के लिए कोई मौका मिले याद रखें, मेरे लिए कोई खिदमत हो मैं हाजिर हूँ हर वक्त, ठीक है। और आपको इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया और हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई। और मैं आज के फंक्शन के सिलसिले में जिन दोस्तों ने ये तस्लीम दिया है उनके ममनून हूँ, और ख़ास तौर पर वली साहब का जो कि चलते फिरते हैं। पहले भी ये फंक्शन करते थे जब स्कूल में होते थे, टीचर थे, फिर सफाइयाँ होती थी, सब भी इनकी जिम्मेदारी होती थी। अब भी इन्होंने वही अपना काम किया, असम्बली करवा रहे हैं, सजा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अब जनाब हाफिज़ रमज़ान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे असातिज़ा कराम दुनिया से चले गए उनके लिए, जो हमारे साथी, जो हमारे क्लास फेलोज़ थे, हमारे सेशन फेलो थे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले, उन तमाम लोगों के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनके मर्तबे बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस तकरीब के जो जैसे जनाब अहमद साहब ने फरमाया, ये पुराने रफ़कार जो सबसे आप जानते हैं कि जनाब मोहम्मद अहमद साहब थे, जनाब हमारे जो है बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद साहब थे, और इसके अलावा जो है अल्ताफ़ुर्रहमान ताहिर साहब थे। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग साज़ा में से अहमद साहब, असद साहब, असद इकबाल साहब, गुलाम फरीद साहब, असद इकबाल साहब 20 ग्रेड में रिटायर्ड हुए आपने देख, लेकिन अचानक उनकी स्कूल ड्यूटी पर उनकी जो तबीयत ख़राब हुई और दिल का दौरा पड़ा और अल्लाह के पास पहुँचे। तो बहरहाल कहने का मतलब कि वो बड़े कीमती है आपके साज़ा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मकाम को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, और आपके जितने साथी थे उन सब के लिए दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिजमीइल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात या इलाहुल आलमीन। अपने फजल से, करम से इस हमारे असातिज़ा किराम जो स्कूल में पढ़ाते रहे और उन्होंने इन बच्चों की तालीम और तरबियत करके इनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने में अपने खून पसीना को जो है खपाया। या इलाहुल आलमीन उन असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, उनकी कबूर को जन्नत का बाग फरमा, उनकी कबूर को वुसअत अता फरमा, और उन पर रहमतें और बरकतें नसीब फरमा, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम का हकदार बनाकर उनकी जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, लफ्ज़ ख़ताएँ हैं, या अल्लाह तू माफ़ फरमा, और अपनी रहमत से उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम का हकदार बना। बाकी जितने इनके साथी थे, तलबा थे, या अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। और ख़ुसूसन या इलाहुल आलमीन इन्होंने जो इंतज़ाम किया, जो इतना प्रोग्राम किया, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए और अपने असातिज़ा को इज़्ज़त और मकाम देने के लिए जो इन्होंने ये शर्फ हासिल किया, या अल्लाह अपनी रहमत से, उसकी बरकत से इन्हें आला से आला और मकाम अता फरमा, इनके दर्जात को और बुलंद फरमा, इनके मुक़द्दर के सितारों को और चमका, और इनकी नस्लों को भी इनके लिए आला से आला सरमाया बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कौमी तराना पढ़ेंगे और बुलंद आवाज़ में और आवाज़ मिलाकर कौमी तराना पढ़ना है। सरज़मीन शादात ईश्वरे हसीन शादात, तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादात, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अमान
पाकिस्तान इस वक्त 9th A वाला जो हमारा कमरा है वहाँ पर आपकी क्लास होगी और हाफिज रमज़ान साहब क्लास लेंगे। तमाम बच्चे लाइन में चले, जरा लाइन में, लाइन नंबर 1 पहले रब नवाज साहब शाबाश, तेज से चले हरी आप। और मेरा ख्याल है मैं चुप कर देवा, कोई मेरी समझ ही ना आ रही। नहीं लाइन तक मैं साथ उसके बाद जो है आपके साथ किधर कहते थे, इधर इधर जाना, इधर आना। हाँ यार बहुत जगह कौन है? जरा मुर्गा बनाओ यार। और कौन सा आया लेट भाई? इधर पे हम लोग आगे वगैरह खेलते थे ना। चलो चलो नहीं होना ना छोड़ो, कुत्ते से कम वाले थले पर नहीं किया। आराम से बैठो, आराम से खड़ा है। सारे साइलेंट पे लगा लो ना, किसी न किसी का आ जाएगा साइलेंट पे। अभी हमारे उस्ताद हमें एक मुख्तसर सा लेक्चर देंगे, उसके बाद जहाँ दीगर असातिज़ा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे, तो फिर हम फर्दन अपना तारुफ जो है वो पेश करेंगे। जैसा कि ग्रुप में शेयर किया था, सब लोग अपना नाम बताएंगे और इस वक्त क्या कर रहे हैं ये बताएंगे। असर अब शुरू करते हैं आज। खड़ो कैसे बैठ सकते हैं इसकी भी प्लीज खामोशी से। बिल्कुल अस्सलाम भजन जिन्होंने आज काम न किया तो आज ने काम नहीं किया, उनकी बुलाया मुर्गा बनाए, मुर्गा बनाएंगे और एक को क्या उनका भी कुछ मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल अलहाज साहब, इस इंसान को अजमत और हिफ्तों को उस मुकाम पर पहुंचाया कि जिसे औजे सुरैया जो है बना दिया। ये कैसे मिला? ये अल्लाह की अता से। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। आप जब क्लास में थे आपको मेरी हर खामी पता है कि हम कैसे थे, क्या करते थे और कैसे थे, लेकिन आप तालिब इल्म थे। तालिब इल्म की अज़मत और उसका
مقام جو ہے اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے، اس مقام اور اس عظمت کی وجہ سے اللہ پاک کے علم کے نور کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ مایا کی طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم رکھتا ہے باہر تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ آج پورے یعنی کہ 40 سال 50 سال پہلے سن 73 میں سیکنڈ شفٹ میں جو ہے اس وقت فرید صاحب دوسری کلاس میں تھے جب میں نے جو ہے سکول کی جوائن کی، اور الحمدللہ 35 سال لگاتار جناب ملک صاحب کی قیادت اور باقی بعد میں جو آتے رہے ان کی جو ہے سرپرستی میں کام کیا، اور اللہ پاک نے ہر قدم پر جو ہے ہمارے سکول کا نام وہ روشن کیا۔ اب باتیں تو بڑی ہیں، آپ کے دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی اور موقع دیں جو ہے سمجھے۔ لیکن آج تھوڑی سی میری جو دیر ہو گئی، میرا ایک دماغ گھومتا رہا، آپ کی محبت کھینچے ہیں، 2-4 اشعار میں لگی ڈاکٹر صاحب غلطی معاف سر نے اسپیشلی اس گیدرنگ کے حوالے سے کچھ اشعار تحریر کیے ہیں جو آپ کو یہ دعا کہ اللہ سارے شاعروں کی آرزو ہے۔ میں بھی سناؤں گا۔ خدایا ان شاہی بچوں کو، خدایا ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے کہ سریا سے بلند جن کا سفر ہو، یہ سریا سے بلند جن کا سفر ہو۔ سریا آپ جانتے نہیں؟ سوریا ستارہ، اس سے بھی اونچا پرواز کرنے والے الحمدللہ ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام، وہ عظمتیں، وہ رفتیں صرف اللہ پاک جو ہے آپ کی اس محنت کو، اس گیدرنگ کو، اس پروگرام کو آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنائے، اور اساتذہ کی عزت و عظمت کو جو ہے اللہ پاک جو ہے ہر قوم کے ہر فرد، ہر مرد اور ہر بچے کی زندگی کا حصہ بنائے۔ 10ویں اے میں تھا، ہمارے احمد صاحب ہمارے کلاس ٹیچر ہوا کرتے تھے، اور دیگر اساتذہ میں رمضان صاحب، اسجد صاحب، سلیم صاحب، عبد الرحمان صاحب، افتخار صاحب، یہ اساتذہ میں پڑھایا۔ 9ویں میں ہم اسی بلاک میں تھے، اور اس سے 1-2 کمرے چھوڑ بھی تھے۔ یہ دیوار جو تھی یہ ہماری جائے پناہ ہوا کرتی تھی، جب کوئی بنک مارنا ہوتا تھا تو اس دیوار پہ اس طرح کام کر جاتے تھے گودام سے، اور پھر کوئی چوکیدار میں پکڑ کے واپس ٹیچرز کے حوالے کر دیا۔ ہمارے بعد یہ گرل لگائی گئی تھی۔ یہ گرل اس کے اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اساتذہ کو جو کبھی اسٹکس درکار ہوا کرتی تھی تو ہمیں سے کسی کی ڈوٹی لگتی تھی کہ اس دیوار پہ چڑھو اور اس درخت سے اسٹک توڑ کے تو لے کے آؤ۔ تو 82 میں سر میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی، پھر بی ایس کیا اکنامکس میں، پھر ایم ایس پی کیا مینجمنٹ سائنسز میں۔ تو ابھی میں بینک سے وابستہ ہوں، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ایک بینک کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہیں واہ میں پہنچا۔ نظم ہے، اس کا عنوان ہے یہ کہانی نصف صدی کی ہے۔ یہ کہانی نصف صدی کی ہے، یہ تمہارا میرا جو قصہ موسال ہے، یہ میری کہانی بھی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے، اس میں آپ بھی مخاطب ہیں۔ یہ تمہارا میرا جو قصہ موسال ہے، یہ جو بیش و کم کوئی صدی پہ محیط ہے، اسی درس گاہ کی گود میں یہ پلا بڑھا، اسی درس گاہ کی گود میں یہ پلا بڑھا، یہ ہمارے ساتھ جوان ہوا،
यही दर्सगाह करार थी, यही दर्सगाह करार थी, यही दर्सगाह मदार थी। यहां से निकल के हम आसमान की वुसअतों में बिखर गए, यहां से निकल के हम आसमान की वुसअतों में बिखर गए, इसी खाकदान की गर्द में कहीं गुम हुए। यहां से निकल के हम आसमान की वुसअतों में बिखर गए, इसी खाकदान की गर्द में कहीं गुम हुए। कहीं गुम हुए तो सही मगर, कहीं गुम हुए तो सही मगर यही दर्सगाह मदार थी। कहीं गुम हुए तो सही मगर यही दर्सगाह मदार थी। कभी निस्फ रात के ख्वाब में, कभी दिन के उजले ख्याल में, कभी निस्फ रात के ख्वाब में, कभी दिन के उजले ख्याल में, ये जगह यहाँ पे गुजारा वक्त लहू के साथ रवां रहा। ये जगह यहाँ पे गुजारा वक्त लहू के साथ रवां रहा। यहाँ लोग थे, इन जैसे लोग, यहाँ लोग थे कि जो कोहे वक्त को काटने का हुनर सिखाने में ताक थे। यहाँ लोग थे कि जो कोहे वक्त को काटने का हुनर सिखाने में ताक थे। वो जो खाली सफ़ाए ज़ीस्त पर हमें रंग रंग के फूल काटने का सलीका सिखाते थे। यहाँ लोग थे कि जो कोहे वक्त को काटने का हुनर सिखाने में ताक थे। वो जो खाली सफ़ाए ज़ीस्त पर हमें रंग रंग के फूल काटने का सलीका सिखाते थे। जो बताया करते थे हमको नुस्ख़ाए दिल कुशा, जो बताया करते थे हमको नुस्ख़ाए दिल कुशा, कि बरसती बारिशों जलती धूप से बच के कैसे चला करें। इसी दर्सगाह के मुहीत में, इसी दर्सगाह के मुहीत में कहीं खुद को ढूंढने आए हैं। आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसी दर्सगाह के मुहीत में कहीं खुद को ढूंढने आए हैं। हमें ढलती उम्र की खलबली में तलाश है। इसी दर्सगाह के मुहीत में कहीं खुद को ढूंढने आए हैं। हमें ढलती उम्र की खलबली में तलाश है, किसी वक्त की जो गुजर गया, किसी वक्त की जो गुजर गया, किसी सनसनाती सी डांट का कोई शायबा, किसी सनसनाती सी डांट का कोई शायबा, किसी खशमगीन सी निगाह का कोई जायका। चलो यारो ढूंढें यहीं कहीं, किसी क्लास रूम के बेंच पर, किसी ब्लैक बोर्ड के रूबरू, किसी राहदारी के दरमियान, किसी सब्ज़ाजार के चास में। मेरा नाम अमजद शहजाद है। मैं अभी भी हुई है, अब कम हो गया है। अमजद शहजाद खलील है, अमजद शहजाद खलील मेरा नाम है। और मैं 10th C में था, जो अब स्टाफ रूम है वो हमारा क्लास रूम हुआ करता था। और इब्राहिम साहब हमारे क्लास टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाया करते थे हमें। उनके अलावा बशीर भट्टी साहब फिजिक्स पढ़ाया करते थे, अहमद साहब पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो ऐसा खूबसूरत वक्त था कि उस वक्त को जितना याद किया जाए कम है। तो उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैंने FSC किया, फिर मैंने BS किया। उसके बाद लिटरेचर का शौक पैदा हुआ, तो बीच में बहुत लंबे गैप के बाद मैंने मास्टर्स किया उर्दू में और इंग्लिश में। तो आजकल वाह में ही एक प्राइवेट कॉलेज, वाह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में इंग्लिश और उर्दू का तदरीस का काम कर रहा हूँ। तो आपके साथ ही आंखें नम हो रही हैं ये माहौल देखकर। तो एक सिलसिला चल पड़ा है, तो आप बताया भी मैंने कि लिटरेचर से ताल्लुक है, तो मैंने भी कुछ अशार इसके बाद वही मिलेगा आपको। इतने चेहरे जो मुस्कुराए हैं, इतने चेहरे जो मुस्कुराए हैं, आज सब खुद से मिलने आए हैं।
اتنے چہرے جو مسکرائے ہیں آج سب خود سے ملنے آئے ہیں. یہ جو چھتنار ہیں گھنے چھتنار، یہ جو چھتنار ہیں گھنے چھتنار، یہ ہمارے سروں کے سائے ہیں. یہ جو چھتنار ہیں گھنے چھتنار، یہ ہمارے سروں کے سائے ہیں. روشنی اور زندگی کے اصول، روشنی اور زندگی کے اصول درسگاہ نے ہمیں سکھائے ہیں. روشنی اور زندگی کے اصول درسگاہ نے ہمیں سکھائے ہیں. ہم نے استاد کی وساطت سے، ہم نے استاد کی وساطت سے زندگی میں مقام پائے ہیں. ہم نے استاد کی وساطت سے زندگی میں مقام پائے ہیں اور زندگی کے ہجوم سے ہم سب، زندگی کے ہجوم سے ہم سب آج ہم خود کو ڈھونڈ لائے ہیں. زندگی کے ہجوم سے ہم سب آج ہم خود کو ڈھونڈ لائے ہیں. بہت شکریہ. محمد خاور صاحب 10C کلاس تھی، ابراہیم صاحب کلاس انچارج تھے، پٹی صاحب اور احمد صاحب ٹیچر تھے ہمارے. تو FSC کے بعد میں نے BSc آنرس کی، MSc آنرس کی، اور پاکستان کی سب سے بڑی بسکٹ فیکٹری EPM میں 19 سال تک کام کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں انوویٹیو بسکٹ لائنس کی. اس کے بعد آج کل روپالی بسکٹس، روپالی فوڈس میں ایز اے امپورٹنٹ. اور میں تمام جو بھی اتنی آپ کے کمیٹی جتنی آرگنائزنگ کمیٹی ہے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی کلاس میں ہوں. اور یہ آپ لوگوں کی وہ تھی رہنمائی تھی اور آپ لوگوں کی سب لاہور سے ہیں اسپیشل. میرا نام محمد انوار الدین 10C میں تھا میں، اور مجھے یہ اس اسکول کی وساطت سے ایک عزت ملی کہ میں نے اسپورٹس میں اسکول کے لیے ایتھلیٹکس میں، ہاکی میں، باسکٹ بال میں کافی کامیابیاں لی اور اس اسکول کا نام روشن کرنے. میں نے BSc گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ہال سے کی، B.Ed کیا، پھر MA پولیٹیکل سائنس میں نے کی. اس کے بعد درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہوا اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے، اور میں آج کل حضرت کے پاس ایک ہائی اسکول ہے ادھر پہ بطور ہیڈ ماسٹر کام کر رہا ہوں. اور آصف محمود ملک کلاس 10C، خاور، امجد، شہزاد، انوار، تنویر عصمت. تنویر سے میرا بینچ فیلو بھی تھا، کٹھی مار کھاتے رہے ہم کافی دفعہ ایک دوسرے کی وجہ سے. یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد میں نے FSC کی. FSC کے بعد میں نے انجینئرنگ کی الیکٹرانکس میں. الیکٹرانکس انجینئرنگ کرنے کے بعد موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں موسٹلی جو بھی کام کرتا رہا. 15 سال میں دیوان سلمان فائبر آپ نے نام سے سنا، آئی واز ڈائریکٹر ٹیکنیکل دیر. پھر میں شفٹ ہوا آئل اینڈ گیس میں. آج کل ایک کینیڈین کمپنی ہے یورا انرجی، ان کا کنٹری مینیجر ہوں پاکستان. نواز میرا نام ہے. 1982 میں میٹرک کرنے کے بعد میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کر لی، اور تقریباً جو ہے نا وہ 2000 تک میں پاکستان ایئر فورس میں رہا. اس میں کچھ عرصہ میں فارم میں، 1 سال چائنا میں، 3 مہینے امریکہ میں، اور کچھ فرانس کا بھی میں نے ٹور کیا ایئر فورس کی وجہ سے. 2000 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائرمنٹ کے بعد میں 1 سال بعد دوبارہ ری اپائنٹمنٹ ہو گیا منسٹر ڈیفینس میں، اور ابھی تک میں کنٹینیو منسٹر ڈیفینس میں جاب کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اکرام، ڈیئر کلیگز، السلام علیکم. امجد علی خان، میٹرک کیا، وہ سب کچھ کیا جو آپ لوگ بول چکے ہو. میں اسی کا حصہ تھا، ریپیٹ نہیں کروں گا. اور وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بھی تم کرنا چاہتے ہو اور جو کیا ہے. میٹرک کیا سر، اس کے بعد پاکستان آرمی جوائن کی. میں نے آرمی، ہمارے بہت سارے اس میں محکمے ہوتے ہیں، اور ایک محکمہ ہوتا ہے انفینٹری جو کہ لڑائی والا ہوتا ہے. تو
मैं उस महकमे से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरबियत, आप लोगों ने जो हमें पढ़ाया, अपने दोस्तों यारों की बहुत सारी दुआओं के साथ फ़ौज के मुख्तलिफ मराहिल तय करते करते आज मैं जनरल हूँ आर्मी का। बड़ी मुझे खुशी है कि जो पौधे आपने लगाए थे वो जो तनावर और अच्छे दरख्त बन गए। मलिक असीम मेरा नाम है और मैं MSc M.Ed हूँ और इस वक्त एज एजुकेशन ऑफिसर तहसील का काम कर रहा हूँ। सर आज हम जो कुछ भी हैं, मैं और मेरे बैच फेलो, मेरे क्लास फेलो, आप अजीम उस्ताद की बदौलत मैं आपके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक महमूद है। मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MS सॉइल साइंसेस किया और फिर फैसलाबाद में ही जा, उसके बाद रिसेंटली फिर मैंने कायदे यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया 2005 में और रिसेंटली मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैनी मेडल ऐसे ताल्लुक़ रखते ही ज़्यादा बोलेगा नहीं। मेरा नाम मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद मैट्रिक 82 में किया, उसके बाद डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में और उसके बाद से AWC एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में एज ए PO। आरफ अपने अपने अंदाज से सब करा रहे हैं। खटक साहब ने, अमजद खटक ने बताया है कि जो कुछ आपने किया है वो सब कुछ मैंने भी किया है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने की हुई है वो शायद सब ने नहीं की। आप FSC का जिक्र कर रहे हैं, आप FSC का जिक्र कर रहे हैं, सारे कहते हैं जी मैंने FSC की हुई है। मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरी शादी हो गई। और सुने, मैंने भी FSC की हुई है, लेकिन जिस तरह आपने की है उस तरह नहीं। मैंने इस तरह की है कि हमारी पाक आर्मी को जरूरत होती है जवानों की। मैं फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। मैं MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री M.Ed हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा भी एक बेटा पाक आर्मी में है। मैं पटवारी में सिर्फ यही कहूँगा, जिंदगी दी दोस्तों गल सारी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। जिंदगी दी दोस्तों गल सारी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो सी। घड़ी पल दा मेला बाजार दुनिया, एक दिन कबर अंदर तेरी रात हो सी। घड़ी पल दा मेला बाजार दुनिया, एक दिन कबर अंदर तेरी रात हो सी। आसण मुनकर नकीर सब पास तेरे, जदू अमलां दी गल बात हो सी। आसण मुनकर नकीर सब पास तेरे, जदू अमलां दी गल बात हो सी। जे तू नेक कोई अमल कोई कीते हो सन, उन्हां अमलां तू तेरी निजात हो सी। शुक्रिया। मेरा नाम है 10th सीख में मैं पढ़ता था। कासम साहब, एक टीचर जिनका आप नाम नहीं लिया वो मंशा साहब। जी इब्राहिम साहब हमारे। मैं पिंडी सेलेक्ट से FA किया, उसके बाद फिर TTI में आ गया। यहाँ पर मैंने एज ए आर्टिज़न 3 साल किया। फिर मैंने PF में जॉब कर सर्विसेज ग्रुप में एज ए SGM। मेरा नाम अरशद निहाल है और मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में हूँ और यही तारुफ है, बाकी तारुफ मेरा आप लोग। सर मेरा नाम तनवीरुर रहमान है और मैं 10th C में और आज जो तिलावत की है उस वक्त जो मैं तिलावत किया करता हूँ और स्कूल में जो तिलावा में जो स्पीच होती थी स्कूल की वो भी मैं ही
अक्सर किया करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैंने बहुत सारे इनाम दिए। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरे ख्याल में मेरे घर में 20-25 इनाम होंगे जो मेरे। फिर मैं बेस्ट प्लेयर भी होता था वॉलीबॉल का, सारे लोग मुझे जानते हैं मेरे इस हवाले से भी, क्योंकि तो जी रिवॉल्वर जी तो अल्लाह का शुक्र है मैं स्कूल की सारी एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। तो बहुत सारे इनाम जो हमारे वो सरवर साहब जो हमारे पीटीआई होते थे वो अक्सर मुझे कहते थे कि यौम वालिदैन को मिलेंगे, लेकिन ना यौम वालिदैन हुआ तो ना मुझे इनाम मिले। मैं सोच रहा था शायद आज मुझे वो मिल जाए। ठीक है सर। बाकी सर मैंने मास्टर की MBA किया हुआ है और मैं आज तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज ए GM फाइनेंस काम कर रहा हूँ। मोहम्मद अली मेरा नाम है, 10th C का तालिब इल्म था मैं, आप साथियों की तरह। आजकल मैं PFA में एज ए सेफ्टी अफसर। तनवीर इसमें मेरा नाम है, 10th C में था और आजकल मैं PF में एज AM काम कर रहा हूँ। आरिफ इकबाल मेरा नाम है, शुरू से यही नाम। 10th A में मैं पढ़ता था यहाँ पे, यहाँ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मैं यहाँ के अच्छे स्टूडेंट्स में था। मैंने 8वीं क्लास में यहाँ से मेरिट स्कॉलरशिप लिया। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज से मैंने FSC की, फिर फैसलाबाद चला गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैंने 2 सेमेस्टर पढ़े, वहीं पे फिर मेरा दाखिला MBBS में हो गया पंजाब मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से मैंने MBBS किया, 90 में मैं इधर PF में आ गया था। 95 में मुझे यहाँ जॉब मिल गई थी और अभी मैं यहाँ से सीनियर मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। आसिम महमूद नाम है मेरा और जैसे माशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, 82 वाले ही हैं। तो 10th C में थे हम इधर और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि सारे भाई बहुत ये सुन के खुशी हुई है कि जिस जॉब में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैंने भी जब से ये अपना ये स्कूल ये छोड़ा उस वक्त से मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ, कपड़े का काम कर रहा हूँ और आज दिन तक यही कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे असातिज़ा इकराम और दोस्त हमारे हमें जानते हैं। मेरा नाम मीर जुल्फ़िकार है। मैं 8th तक इतने तो संदा सारे पता 8th तक मैं भी इतने चला। आजकल मैं टैक्सली अपना बिजनेस करना जो मेरे वाल साहब का बिजनेस है 1958 तो मेरे वाल साहब का बिजनेस है टैक्सटाइल ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈਦਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बदर कसर महमूद फ्रॉम टैक्सला 10 लास्ट ईयर क्लास पढ़ाई तो जी की पता ही मैं जी फील्ड सिलेक्ट की थी मैं पॉलिटिक्स की फील्ड से कि खिदमत खाल के अब रिज़्क़ अल्लाह देना है उस वादा किया है कि मैं देना है बाकी इंसान को जो उसकी तवक्को है वो है ये कि भाई तू बाकी रास्ते क्या करना। मेरा नाम अकील है और मैं वार इंडस्ट्रीज में एज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, स्पेशली खटक साहब के लिए फोर्सेज और MNA MPA को डील करता हूँ। अमजद हुसैन चुगताई और मोटा 10th से मेरा ताल्लुक है। 10th में हमारे जो आरिफ साहब डॉक्टर आरिफ जो हैं ये मेरे नवीन बैठा हुआ साथ ही मेरे वो डॉक्टर नहीं थे आरिफ थे उससे डॉक्टर आरिफ सर हम उनको उनके मुताबिक अमजद भी मेरे साथ में है और अस्मत तो कॉलेज में भी मेरे साथ इकट्ठे रोल नंबर थे हमारे। बहरहाल उसके बाद फिर हम यहाँ से 82 में मैट्रिक करने के बाद मैं MSc मैथमेटिक्स करने के बाद B.Ed करने के बाद फिर मैं टीचिंग डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट में चला गया। वहाँ पे फिर मैंने जो है एज ए SV पहले काम किया, फिर SST किया, फिर उसके बाद मास्टर ट्रेनर के तौर पे काम किया। आजकल मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स के तौर पे रावलपिंडी में काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने असातिज़ा को फॉलो करूँ। उसमें मैं इस टाइम अहमद साहब मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं कि वो मेरे क्लास इंचार्ज होते थे और उनको हर सब्जेक्ट पे मतलब जब हम फारिग होने उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देना, उन्होंने मैथ पढ़ाना, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उन्हीं के वो देख कर फिर यही 4 सब्जेक्ट्स मैंने बाद में छठा ख्याल में तकरीबन 17 साल मैंने ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए। मेरा नाम नवीद खान है, मैं 10th A में पढ़ता था और ये सारे साथी मेरे होते थे और आप सादा आपका शुक्रिया बहुत कि आज आपने हमें
अच्छा इंसान बनाया। तो करंटली मैं अभी भी ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस से हूँ और एक जैपनीज ग्रुप के साथ एसोसिएट करके मैंने मेडिकल स्कूल 7 नंबर से की और आज का मैनेजर से वाबस्ता हूँ और अभी तक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हूर है, मैं 10वीं बी में होता था। अब्दुर्रहमान साहब हमारे इंचार्ज होते थे। साथ ही मेरा मैंने भी FSC BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स किया, फिर मैंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की और अब मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज डिप्टी चीफ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयद नजम इकबाल और 10th बी में अब्दुर्रहमान साहब की क्लास टीचर हमारे सैयद नजम इकबाल और आजकल मैं PUF में AM स्टोर वेपन फैक्ट्री में मेरा नाम सैयद अफरोज अब्बास रिजवी है और मैं यहाँ 10th क्लास से पहले 9th भी छोड़ गया था, फिर प्राइवेट मैंने मैट्रिक की, FSC की, आजकल मैं नेस्कॉम में हूँ और अपना बर्ड्स फार्म चला रहा हूँ। सेक्शन आमिर नाम है, मैं यहाँ पर 77 से 82 में रहा ड्यूरिंग 5th to 10th क्लास। मैं कोशिश की कि जो मैंने जब मैट्रिक किया उसके बाद FSC BSc यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स, तो कोशिश की कि मैंने अपने टीचर्स की वैसे बराबर नहीं आ सकता, लेकिन टीचिंग लाइन में मैंने राउंड किए और नॉर्मल ट्रैक में लिया, फिर FG कॉलेज में लिया एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर, then moved to Beacon House in 2002. Last 20 years of teaching Beacon House and Roots as well. शायद है मैं HMC से आता था और 6th क्लास से मैंने ये फालतू स्कूल ज्वाइन किया। ताज आजाद साहब जो थे अभी क्लास टीचर थे हमारे, बड़े फेवरेट और बड़े शेर व शायरी और करते थे। तो उसके बाद 10th में जो है अहमद साहब क्लास टीचर हुआ करते थे हमारे। उसके बाद मैंने MSc कंप्यूटर साइंस करके तो HMC ज्वाइन की थी। इसके बाद फिर GHQ में रहा 2 साल, उसके बाद HIT उधर से पोस्टिंग करा के HIT आ गया और अभी मैंने रिसेंटली 30 साल सर्विस करके और रिटायरमेंट ली है, 30 साल सर्विस करके ग्रेड 10th बी में थे। अब्दुर्रहमान साहब हमारे टीचर थे और आजकल हम PUF में के हुए में ड्यूटी सर अंजाम थे। मेरा नाम सैयद हैदर अब्बास है, मैंने इकोनॉमी से मास्टर्स किया और सप्लाई चेन से मुंसलिक हो गया आज तक सप्लाई चेन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसार है। 10th A में मैं था क्लास में, सारे मेरे दोस्त 10th A के हैं और BSc मैंने इस्लामाबाद कॉलेज से की। उसके बाद कुछ अर्सा मैं UAE आर्मी में रहा 5 साल एज ए टेक्निकल डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने पैकेजिंग बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। मैं पाकिस्तान में नहीं होता, ओवरसीज़ में होता हूँ, इत्तेफाक से मैं आया हुआ था तो मैंने ज्वाइन किया है। 25 साल से मैं साउथ अफ्रीका के साथ घूम के बोट्सवाना, वहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और मेरे पास वर्क फोर्स तकरीबन 600 और 700 लोगों के करीब है। आदिल रशीद मेरा नाम है, 10th B में था अब्दुर्रहमान साहब की क्लास में और आजकल जो है वो रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ और इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं 10th A में था अहमद साहब की क्लास में और मैट्रिक के बाद मैंने अप्रेंटिसशिप की है PI से, उसके बाद PUF ज्वाइन की थी और 5-6 साल सर्विस की होगी मैंने। उसके बाद मैं सऊदी चला गया था, 16-17 साल वहाँ मैंने काम किया और अभी मैं ऐसी टेक्नीशियन हूँ और एज ए टेक्नीशियन ही काम कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फरीद, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं 72 में मेरा सेकंड शिफ्ट में एडमिशन हुआ क्लास 1 में, प्राइमरी सेकंड शिफ्ट से की, फिर उसके बाद मैट्रिक फर्स्ट शिफ्ट से 82 में की और FSC करने के बाद 85 में मेरी स्कूल में अपॉइंटमेंट होगी। मुझे
इस बात पर फ़ख्र है कि हाफिज़ साहब क्लास 2 में हमारे इंचार्ज थे और उनसे पढ़ा भी। हाफिज़ गुलाब साहब के पास फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा, 90 में मैं फर्स्ट शिफ्ट में आ गया था मलक इसहाक साहब के ज़ेर सरपरस्ती। बहुत काम का सीखा, बहुत सीखने का मौका मिला इनकी सरपरस्ती में, और अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल हो गए हैं यहाँ अब टीचिंग करते हुए। FSC आया था, MA, MA, कंप्यूटर डिप्लोमा सब कुछ यहाँ पे रह के मलक साहब की सरपरस्ती में टीचिंग भी की, काम भी किया और अपनी तालीम भी की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी इसी स्कूल में टीचिंग कर। मेरा नाम शौकत हयात है, मैं एज ए टेक्निकल ऑफिसर या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, और बेसिकली मेरी जो क्लास थी वो 9th A थी। मैं यहाँ 9th में आया था, एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद 2 साल इन दोस्तों के साथ रहा क्लास A पर। सजाद से यहीं से मैट्रिक किया साहब के साथ 1982 में। उसके बाद फिर टेक्निकल साइड चला गया। मैं फिर आजकल PF में एज ए टेक्निकल ऑफिसर डिज़ाइन ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, जिसे आज का हम फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस भी कहते हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। Okay, smile.